सो मूविंग फॉरवर्ड, हमने लास्ट वीडियो में देखा था डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप. नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट एलिमेंट. ये आपका फर्स्ट एलिमेंट हो गया. मूविंग टू दिस एलिमेंट, दैट इज मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म. नाउ इन दिस वीडियो वी आर लर्निंग द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, मतलब द एंटायर फर्म, एंटायर बिजनेस गेट्स डाउन, मतलब पूरा फर्म डिसॉल्व होने के मोड्स क्या होते हैं. तो पहला कहता है there are various ways to dissolve the firm. The first and foremost way is if every partner agrees to that. It means that every partner consents, let's close it down. So with the consent of all partners, the firm gets dissolved. We call it as by agreement. It means by agreement the entire firm gets dissolved. Number two, by compulsory dissolution. This is like in case where all of the partners except one or all gets insolvent, or your business becomes unlawful. पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो जाते हैं या फिर बिजनेस हो जाता है अनलॉफुल, देन इट इज कॉल्ड कंपल्सरी डिसोल्यूशन. इट मीन्स दैट इफ 10 में से 9 पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो चुके हैं, वी कैन से हाउ कैन वन पार्टनर कंटिन्यू. दैट इज कॉल्ड बट वन एज इंसॉल्वेंट. मतलब इफ ऑल are insolvent or business becomes unlawful, we say that it is compulsory dissolution. Now element number 3 says dissolution on happening of certain in contingencies. Now in case of certain contingencies, ये कहता है if the firm का business is for a fixed period and the fixed period gets expired, if it was for a fixed task, adventure, and the adventure gets over, if there's a death of a partner, if there's a death के साथ there's an insolvency of a partner. So what do we say here? कि in case where there was a time specified and the time gets over, there were event specified, event gets over, there's a death of one insolvent, or there is a death of there is an insolvency of a person, or there is a death of a partner. In these situations, unless expressed otherwise, unless remaining partners have a clause in the deed that they may continue, if there is no such clause, then we have learned it in earlier chapter also, okay, if there is absence of norms, even on death of one partner and remaining are more than two, still the firm gets dissolved. But if there is agreement to that remaining can continue, then firm will not get dissolved. Without any agreement for the balance partners to continue the business, the firm gets dissolved on the death of a single partner or insolvency of a single partner. आगे dissolution by notice. It says that if the partnership is at will, मेरा typing error, if the partnership is at will, the firm may get dissolved by any partner giving notice in writing to all other partners. The firm is dissolved as from the date mentioned in the notice, or if not mentioned, then as of the date of communication of notice. What do we learn here? We strictly learn here that when a partnership is at will, you don't have to take consent of other partners by merely giving notice in writing to remaining partners that I want to dissolve the firm. अरे तूने पूछा क्यों नहीं? अरे मैं क्यों पूछूं? पार्टनरशिप एट विल है, नोटिस देना है और फर्म डिसॉल्व हो जाएगी. बट आपको नोटिस देना है, कंसेंट लेना नहीं है. ठीक है. कमिंग बैक टू द फर्स्ट वन फास्ट. The best way to dissolve the firm is let all the partners give consent. Every partner has given consent in writing and the firm gets dissolved. Number one. Number two, compulsory dissolution is like if 9 out of 8 partners are insolvent. मैं क्या गलती कर रहा हूँ? If there are 10 partners and out of that 9 partners are insolvent,
तो एक सिंगल तो कंटिन्यू नहीं कर सकता. If there are 10 partners or 9 are dead, this is called compulsory dissolution. If your business becomes unlawful, it is called compulsory dissolution. Number 3, if case of contingencies, that is time gets over, event gets completed, one partner becoming insolvent or one partner becoming dead, then unless expressed otherwise in the contract, the entire partnership gets dissolved. Then partnership at will में we just have to send the notice, and by giving notice to other partners of your intention to dissolve the firm, your firm gets dissolved. Now there might be a situation that the dissolution of firm will not be possible under the above four situational parts. If the dissolution of firm is not possible regarding the above four, then we may say that the firm may get dissolved by applying to the court. So for example, if I say partnership is at particular partnership, in particular partnership you need consent of all partners to dissolve the firm. The point number 1 यहाँ पे जो था वो. But if every partner does not agree and if partnership is not at will, how will you dissolve the firm? You have to get consent of all partners to dissolve, and you every partner does not give consent, then you need to go to the court. Let's go to the court and let's tell the court, okay, I want to dissolve the firm. So court has some grounds. Court says that if a partner is insane, एक पार्टनर पागल हो चुका है, तो because of that you may try to dissolve the firm. Reason for dissolution which court will allow. Number 2 ये कहता है if one of the partner who was पहले capable of working, हाथ पांव दिमाग चल रहा था, अगर उससे पैरालिसिस हो गया, अगर उसकी आंखें चली गई, अगर उसके हाथ पैर टूट गए, ऐसा कोई एग्जाम्पल जहां पे उसका इनक्योरेबल इलनेस आ चुका है, and that is why you want कि let's close the business and let's go for dissolution. Number 3 कहता है guilty of conduct. If repeatedly you understand one of the partner does not perform his activities well, repeatedly is guilty of misconduct. चोरी करना, ध्यान से काम ना करना, ये सब चीजें रेगुलर हो गई थी. दिस इज व्हाई यू सेड टू द कोर्ट, सर ये 3 में से ये बंदा 4 बार पकड़ा गया चोरी करते हुए, इज गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट, आई वांट टू शॉर्ट माय बिजनेस. पर्सिस्टेंट ब्रीच ऑफ अग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट के वादे तोड़ना. आपने कहा था कल सुबह तक माल आ जाएगा, नहीं आ पाता है, शाम को आ जाएगा, नहीं आ पाता है. एवरी टाइम व्हेन यू मेक अ प्रॉमिस इट गेट्स ब्रीच्ड. तो गिल्टी ऑफ ब्रीच, चोरी नहीं की है बट आपके वादे आप निभा नहीं पा रहे हो, आपके प्रोमिसेस निभा नहीं पा रहे हो, मतलब आप केपेबल नहीं हो कॉन्ट्रैक्ट करने से, हटो यहां से, डिसॉल्व कर देते हैं फर्म को. ट्रांसफर होल्डर इंटरेस्ट, ये लास्ट सेशन में हमने देखा था कि एक ट्रांसफरर अपना शेयर ट्रांसफरी को ट्रांसफर कर सकता है, असाइनर असाइनी को अपना शेयर दे सकता है उस केस में अगर विदाउट कंसेंट ऑफ द अदर पार्टनर्स, इफ द पर्सन दैट इज पार्टनर ट्रांसफर्स इंटरेस्ट टू अनदर वन, there is a point to the other partners ke how can you transfer your share to another without asking us, let's close down the business. आप कोर्ट में कहते हो कि सर इस बंदे ने बाजू वाले को शेयर ट्रांसफर कर दिया, हमें पूछा भी नहीं, अब हमें धंधा नहीं करना है. one of the ground whereby the firm get dissolved. losses, हम कमा नहीं पा रहे प्रॉफिट, सर साल हो गए, 5 साल हो गए, अभी भी प्रॉफिट नहीं है धंधे में, अब बहुत हो गया, अब हमें पेशेंस नहीं है, बाकी पार्टनर्स मान नहीं रहे बट मुझे धंधा बंद करना है, क्योंकि 5 साल के बुक्स देखो प्रॉफिट कमाया नहीं 1 रुपए का. ये लोग कहते हैं अभी भी कमाएंगे, आगे जाके कमाएंगे, लेकिन कब? 5 साल हो चुके हैं, अभी तक एक प्रॉफिट का रुपया नहीं कमाया है. दैट्स व्हाट द रीजन. एंड द लास्ट वन सेज, इसके अलावा ऐसा कोई जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड जो आपको लगता है कि बस सर ये रीजन हो गया है, ये मेरे पार्टनर ने मेरी वाइफ के साथ फ्लर्ट किया है, ये मेरे पार्टनर ने मेरे घर पे आके चोरी की है, ये मेरे पार्टनर ने मेरे बाजू मेरी गाड़ी को, मतलब एनी पर्सनल रीजंस बिकॉज ऑफ विच यू डोंट वांट टू कंटिन्यू बिजनेस विथ हिम, ऐसा हो सकता है. तो ये कहता है एनी जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड नॉट कवर्ड अबाउट, but according to the court it will be just and equitable to dissolve the firm. The firms get dissolved, the firm may get dissolved. Now I'll explain you how to go for this entire part. ध्यान से समझना. My question to you all is, how does firm get dissolved? I don't know आपने 12 में पढ़ा या नहीं, I'm assuming कि आपने नहीं पढ़ा है. How does firm get dissolved?
So one of the way to dissolve a firm is by taking consent of all partners. It generally happens in particular partnership. Number one. Number two, sir, the number two is compulsorily, whereby in case where you can say majority nahi, almost all partners except one is insolvent, yeah dead, yeah business becomes unlawful, and the firm gets dissolved compulsorily. Number three is on contingencies, that is on the time gets lapsed, event gets finished. If there is an adventure to that, वो adventure जो है वो फिनिश हो चुका है, किसी एक पार्टनर की डेथ हो चुकी है या किसी एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो चुका है, तो पी फर्म डिसॉल्व हो सकती है, बट यू मे कंटिन्यू इट बाय एक्सप्रेस अग्रीमेंट, यू मे कंटिन्यू बाय एक्सप्रेस अग्रीमेंट. सर ये पूछता है आगे, सर ये पूछता है आगे कि इन केस वेयर द पार्टनरशिप इज बाय विल, तो हाउ डज पार्टनरशिप बाय विल गेट्स डिसॉल्व्ड? सर इट गेट्स डिसॉल्व्ड बाय जस्ट गिविंग नोटिस, बाय जस्ट गिविंग नोटिस, एंड बाय गिविंग नोटिस टू अदर्स firm gets dissolved. Sir, मान लीजिए consent of all is not available. We need to go to the court. Yes, sir. So, on what ground can court allow you? Death, sorry, insanity. Number one, permanent incapacity. Number three, guilty. Then breach of conduct, transfer of interest without approval of the other partners. आपने मान लीजिए टीशा, नायोमी और अनुजा, थ्री आर पार्टनर्स. अनुजा ने अपना स्टेक समझो किसी एक फ्रेंड को ट्रांसफर कर दिया और टीशा को और नायोमी को नहीं पूछा, तो नायोमी एंड टीशा विल हैव अ राइट कि हाउ कैन यू ट्रांसफर योर स्टेक बीइंग वी थ्री पार्टनर्स टू अनदर विदाउट आस्किंग अस. नाउ वी डोंट वांट टू कंटिन्यू द बिजनेस. दिस इज वन ऑफ द ग्राउंड फॉर डिसोल्यूशन व्हिच नायोमी और टीशा कैन अप्लाई टू द कोर्ट. लॉसेस, फर्म में लॉस हो रहे, रीजन टू द कोर्ट के सर बंद करवाने की मदद करो, ये लोग मान नहीं रहे बट लॉसेस हो रहा है. एंड लास्ट, जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड. अभी के अभी नंबर वन मेजर कंसेंट ऑफ ऑल, नंबर टू कंपल्सरी, नंबर थ्री कंटिजेंसीज, इवेंट खत्म होने पे, टाइम खत्म होने पे, डेथ पे, इंसॉल्वेंसी पे हो सकता है, लेकिन चाहो तो कंटिन्यू कर सकते हो. नंबर फोर बाय नोट गिविंग नोटिस. नंबर फाइव कोर्ट, कोर्ट के अंदर नंबर वन पागल हो चुका है, नंबर टू इनकैपेसिटी हो चुकी है, नंबर तीन ब्रीच किया है, गिल्टी है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, लॉसेस है, इंटरेस्ट ट्रांसफर कर दिया बिना पूछे, और एनी अदर जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड. I hope that is very fine to you. We have taken 12 minutes approx to finish off that part. Moving forward, what shall be the consequence now? Dissolve तो हो गया. Now once you dissolve, what should be the next step? तो guys ये कहता है consequences of dissolution. My question to every one of you all will be, what do you mean by winding up and what do you mean by dissolution? Let's understand very well here. When a firm is dissolved, the business of the firm is wound up. The assets are realized to pay the debts, and the surplus, if any, is distributed among the partners. For the purpose of winding up, the partner may possess certain rights and subject to certain liabilities. वो क्या है? ठीक है. I repeat this stuff before and asking you a small question before that. Winding up and dissolution, फर्क क्या है? Dissolution होने पे फर्म का वाइंड अप होना शुरू हो जाता है. जैसे कि लेक्चर जैसे पूरा हुआ, आप अपना मोबाइल फोन बंद कर दोगे. लेक्चर जैसे पूरा पहले होता था, पूरा फिनिश, लेक्चर इज ओवर, फिर आप बैकिंग ऑफ बैग्स करते थे और अपने स्कूल बस में जाने के लिए दौड़ते थे. मतलब पहले लेक्चर खत्म होता है कि पहले बैग्स पैक होता है. कोई आइंटिक बच्चे होते हैं जो लेक्चर के शुरू होने से पहले ही बुक्स पैक कर देते हैं, लेकिन ऑफिशियली देखो तो पहले लेक्चर पूरा होता है और लेक्चर पूरा होने के बाद हम वाइंड अप करते हैं. पेन्स पेंसिल्स कंपास में रख दिए, हमारी बॉटल टिफिन हमने बैग में रख दिया, बुक्स रख दिए, पैक किया और निकले. मतलब जब फर्म डिसॉल्व होता है उसके बाद वाइंड अप होता है. वाइंड अप में एसेट्स को बेचते हैं, लायबिलिटीज को पे करते हैं और बाकी का सरप्लस पार्टनर्स में शेयर करते हैं. तो वाइंडिंग अप इज द प्रोसेस post dissolution. Winding up is the process post dissolution. Initially what you have to do is to first dissolve the firm, and after dissolution of firm the winding up starts. When the firm is dissolved, the business of the firm is wound up and the assets are realized
to pay the debts, and the surplus, if any, is distributed among the partners. For the purpose of winding up, the partners possess certain rights and subject to certain liabilities. Let's start now. अब ये शुरू होगा कौन से राइट्स लायबिलिटीज है जो मैं यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है एंड एग्जाम के लिए भी इतना ही इंपॉर्टेंट है. पहला वन, what is the right of partners after the firm gets dissolved? What is the right of partner once the firm gets dissolved? Right number one, the first right here is to dissolve. The first right here is to get the firm wind up. मतलब हम फर्म को वाइंड अप करवाएंगे, मतलब एसेट्स को बेचेंगे, डेट्स को पे करेंगे एंड सरप्लस को शेयर करेंगे. ये आपका राइट है एज अ पार्टनर जब फर्म क्या होती है, बंद होती है. फिर कहता है which authorities of partners shall continue even after the firm get dissolved. ये कहता है कि although the firm is dissolved, डिसोल्यूशन के बाद ऑफिशियली आप पार्टनर्स नहीं रहते हो, लेकिन यू विल बी पार्टनर्स ऑफिशियली even after dissolution for two reasons: to wind up the affairs and to complete incomplete transactions. The beauty here is dissolve होने के बाद actually आप partner नहीं हो, but फिर भी you will be liable as a partner with each other for two things: for winding up the affairs, that is selling assets, paying liabilities and surplus assets share करना, and number two, for what you will be liable is to complete incomplete transactions. किसी का ऑर्डर आया होगा वो फिनिश नहीं हो पाया है तो फिनिश करना पड़ेगा, किसी का माल बनाना बाकी है थोड़ा बहुत वो बनाना पड़ेगा और फिर डिसॉल्व करना पड़ेगा. नंबर 3 कहता है राइट टू शेयर इन सरप्लस प्रॉफिट्स, पर्सनल प्रॉफिट्स आफ्टर डिसोल्यूशन. मान लीजिए डिसॉल्व होने के बाद बट वाइंडिंग अप होने से पहले, सर डिसॉल्व होने के बाद बट वाइंडिंग अप होने से पहले कुछ दिन हो सकते हैं बीच में, 10 दिन 20 दिन 50 दिन 100 दिन, जब हम एसेट्स को बेचने की रेडी हो रहे थे, उसको बेचते वक्त अगर आपने कोई भी पर्सनल प्रॉफिट अर्न कर दिया फर्म्स के एसेट्स से, फर्म के नाम पे, फर्म के बिजनेस कनेक्शन से, तो मुझे बताओ वो प्रॉफिट किसका, सभी पार्टनर्स का, क्योंकि वो किसके नाम से आया, फर्म के नाम पे या फर्म के एसेट से या फर्म के बिजनेस कनेक्शन से, तो वो किसका होना चाहिए, सारे पार्टनर्स का. आफ्टर डिसोल्यूशन बिफोर वाइंड अप हर एक पार्टनर ने जो भी सीक्रेट प्रॉफिट अर्न किया होगा वो सारे पार्टनर्स को शेयर करना पड़ेगा. लेट मी रिकैप फर्स्ट 3 पॉइंट्स. फर्स्ट पॉइंट से हमें वाइंड अप करना है. डिसोल्यूशन के बाद पार्टनर का पहला हक क्या है, वो वाइंड अप कर सकता है. नंबर 2, कंटिन्यूइंग ऑथोरिटी ऑफ पार्टनर्स फॉर द पर्पस ऑफ वाइंड अप. तो ये कहता है कि वाइंड अप होने के बाद उसके पास, सॉरी आई एम सो सॉरी, डिसोल्यूशन होने के बाद और वाइंडिंग अप होने से पहले कौन से ऐसे पावर्स है जो पार्टनर्स के पास रहेंगे इवन दो दे आर नो मोर द पार्टनर्स बिकॉज फर्म इज डिसॉल्व्ड. बोला टू वाइंड अप द बिजनेस एंड टू कंप्लीट इनकम्प्लीट ट्रांजेक्शंस. हाउ अबाउट पर्सनल प्रॉफिट्स अर्न्ड आफ्टर डिसोल्यूशन. तो ये कहता है वॉट एवर पर्सनल प्रॉफिट्स आर बीन अर्न्ड आफ्टर डिसोल्यूशन बट बिफोर वाइंड अप, वो सारा का सारा प्रॉफिट सभी में शेयर होना चाहिए. अगर वो प्रॉफिट अर्न फर्म के नाम से हुआ है, प्रॉफिट फर्म्स के एसेट से हुआ है या फर्म के बिजनेस रेफरेंसेस से हुआ है तो सबका माना जाएगा भले ही फर्म डिसॉल्व हो चुकी है फिर भी. अब ये एकदम तोड़ू कॉन्सेप्ट है. राइट टू हैव प्रीमियम रिटर्न ऑन प्री मैच्योर डिसोल्यूशन. बहुत मजा आएगा, हैव पेशेंस. Now what happens here, in case where a partner who is admitted to the partnership firm and he's been told to pay the goodwill for that. Now once he pays goodwill, say for example 3 lakh rupees, after paying goodwill the firm gets shut down, that is dissolved. What happens is goodwill पे किया जाता है for some years. How you calculate goodwill? Super profits into number of year of purchase.
मान लीजिए द नंबर ऑफ ईयर ऑफ बजट वॉज 3 years and profit was 1 lakh, तो 1 lakh into 3 is 3 lakh का goodwill. But what happened? In 1 year the firm got dissolved. तो जो 2 लाख रुपए का प्री मेच्योर्ड डिसोल्यूशन गुडविल हुआ, वो उस एडमिटेड पार्टनर को वापस मिल जाना चाहिए. आइए पहले एग्जांपल देखते हैं. X entered into a partnership in a firm for a period of 10 years and paid rupees 5 lakh as premium, that is goodwill. अब 10 साल के लिए गुडविल पे किया गया है 5 लाख रुपए का, लेकिन फर्म गेट्स डिसॉल्व आफ्टर हाउ मेनी इयर्स? 3 years. Now in this case, how much goodwill is utilized? So 5 lakh into 3 years by 10 years, that is 1,50,000. कितना unutilized है? तो 5 lakh minus 1,50,000, that is 3,50,000. Now this 3,50,000 is the right to have premium returned on premature dissolution. यहाँ पे premature dissolve हुआ है, मतलब 10 साल के पहले फॉर्म डिसॉल्व, आपको 3.5 लाख वापस देने पड़ेंगे. That's the concept. When a partner has paid goodwill on entering into partnership and the firm is dissolved before the expiry of the term, he shall be entitled to repay the whole or reasonable part of premium. The amount of repayment will depend upon the terms of the contract and the length of time. यहाँ पे जितना भी अनएक्सपायर्ड है वो आपको गुडविल वापस पे कर देना पड़ेगा. लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट ट्विस्ट ये यहाँ पे आता है, तो मैं अभी यहाँ पे रेड मार्क कर रहा हूँ. No such premium shall be paid to the partner if such premature dissolution is due to the death of the partner or is due to his own misconduct or as per the agreement which contains no provision for return of premium. अगर firm gets dissolved because of death, it is in no one's control. You will not get your unexpired goodwill back. अगर आपके ही आने से फर्म के कारस्थान बदल गए और फर्म बंद हो गई, या फिर it was said earlier, in any situation you will not get your goodwill back. ये केसेस में गुडविल वापस नहीं मिलेगा, बाकी तो गुडविल वापस मिल सकता था. मैं वापस एक एग्जांपल लेता हूं टू मेक इट मोर क्लियरर. 3 दोस्त है, राम, श्याम और लक्ष्मण. उस 3 दोस्तों का पार्टनरशिप हमें सालों से 25 साल से है. अब एक बंदा है हनुमान, वो उस फर्म में ऐड हो जाता है और वो ऐड होते वक्त उसे कहा जाता है कि तुझे 5 years के लिए गुडविल देना पड़ेगा और वो गुडविल होगा 5 साल का 5 लाख रुपया. उसने 5 साल के 5 लाख दिए, लेकिन अगले 1 साल में ही फर्म बंद हो गई. तो अगर 5 साल के लिए 5 लाख थे और 1 साल में फर्म बंद हो जाती है, तो बाकी का अनएक्सपायर्ड टर्म कितना है? 4 साल. और अनएक्सपायर्ड गुडविल कितना होगा? 5 लाख इंटू 4 years बाई 5 years, वो होगा 4 लाख रुपया. और 4 लाख रुपया गुडविल उसको मिलना चाहिए हनुमान को वापस. येस और नो? येस. लेकिन अगर हनुमान को पहले से बोला गया था कि कोई भी रीजन से वापस नहीं मिलेगा, तो वापस नहीं मिलेगा. नंबर 2 बोला गया था डेथ पे नहीं मिलेगा, और नंबर 3 तेरे आने से ही गड़बड़ हो गई, तो वापस नहीं मिलेगा. अब इसके बाद जो नेक्स्ट 5th राइट आता है, राइट ऑफ अ पार्टनर ऑन डिसोल्यूशन, दैट इज right where a partnership contract is rescinded for fraud or misrepresentation. ये कहता है, मान लीजिए एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फर्म में किसी एक बंदे को एडमिट करवा गया, पर उसे फर्म की सही पोजीशन फाइनेंशियली नहीं बताई गई, उसके साथ फ्रॉड हुआ, उसके साथ मिसरिप्रेजेंटेशन हुआ, मतलब उसे सारे के सारे सच फैक्ट्स फर्म को ज्वाइन करने के वक्त बताए नहीं गए थे, और उसको लगा कि फर्म तो बहुत अच्छी है, बहुत अर्न कर रही है, बहुत प्रॉफिट्स कर रही है, बहुत ग्रो करेगी, तो वो एडमिट हो गया एज अ पार्टनर. उसे हम कहेंगे अग्रीव्ड पार्टनर, क्योंकि आगे जाकर वो फर्म बंद हो गई, डिसॉल्व हो गई, तो बेचारा इतना पैसा लेके आया, कैपिटल लेके आया, गुडविल लेके आया, फिर हुआ क्या? फर्म तो बंद.
ये कहता है ऐसे पार्टनर्स को क्या राइट मिलेगा, राइट टू लियन और राइट ऑफ रिटेंशन, एक वन एंड द सेम थिंग, ऑफ सरप्लस ऑफ एसेट्स ऑफ द फर्म आफ्टर द डेट्स ऑफ द फर्म हैव बीन पेड, आफ्टर द डेट्स ऑफ द फर्म हैव बीन पेड। मतलब ये कहता है कि बैलेंस शीट के एसेट साइड में जो भी पैसा है वो एसेट को पे करने के बाद, डेट्स को पे करने के बाद जो पैसा बचेगा वो सारे पार्टनर्स में नहीं, पहले ऐसे पार्टनर में शेयर होगा जिसको आपने बिकॉज ऑफ फ्रॉड अंदर लेके आए थे। नंबर 2, आफ्टर दैट he will be ranked as creditor of the firm in respect of any payment made by him toward the debt of the firm। मतलब अगर उसके पैसों से डेट्स पे हुई है, फर्म की डेट्स पे हुई है उस आने वाले पार्टनर के पैसों से, तो वो पार्टनर ने जो पैसे लाए उसे कैपिटल नहीं माना जाएगा, उसे फर्म का डेट मतलब उसे क्रेडिटर माना जाएगा। नॉर्मली व्हेन पार्टनर ब्रिंग्स इन मनी वी कॉल इट एज कैपिटल, हियर व्हेन पार्टनर ब्रिंग्स इन मनी टू पे द डेट ऑफ द कंपनी टू पे टू द क्रेडिटर, ही विल बी आल्सो बी टर्म्ड एज क्रेडिटर। एंड उसके बाद भी अगर उसके पैसे पे पूरे नहीं हो पाए, इफ ही हैज लॉस्ट सम मनी, देन द पार्टनर्स जो थे फर्म के, जो गिल्टी थे फ्रॉड से, दे विल बी लायबल टू पे ऑल द डेट्स टू दैट। लेट मी एक्सप्लेन यू द एंटायर पार्ट वंस अगेन। ये 5 चीजें एग्जाम में आने के लिए बनती है, शॉर्ट बनती है। अंडरस्टैंडिंग दिस एलिमेंट, अंडरस्टैंड, ए बी और सी पार्टनरशिप फर्म चला रहे हैं। उन्होंने मिस्टर वाई को बोला कि आप हमारी फर्म में आइए, हमारी फर्म में कैपिटल डालिए, आपको पैसे डबल हो जाएंगे। वाई ने सोचा कि ये तो सब अच्छा दिख रहा है, सब टकाटक है, सब फर्म बम ऑफिस। वाई ने पैसा दे दिया एबीसी फर्म को। अब वाई ने पैसा जब दिया उसके बाद पता चला फर्म में तो कुछ है ही नहीं और फर्म हो गई क्या, डिसॉल्व। अब ये सिचुएशन के अंदर हम कहेंगे द पार्टनर वाज इंड्यूस्ड इन द फर्म एज अ पार्टनर, एज एन एडमिटेड पार्टनर, इनकमिंग पार्टनर बिकॉज ऑफ फ्रॉड। अब वॉट एवर मनी ही ब्रिंग्स इन एज वॉट, मनी ब्रॉट इन बाय वे ऑफ कैपिटल और मनी ब्रॉट इन बाय वे ऑफ गुडविल। देखो यार, एनी सम पेड बाय हिम बाय परचेज ऑफ शेयर एंड फॉर कैपिटल, ये जो पैसा वो लेके आया, ये जो पैसा वो लेके आया, वो पैसे का लॉ ने क्या बोला, ये सब पैसे जो है उसे वापस मिलने चाहिए। और उसके लिए वो क्या कर सकता है, फर्म के एसेट्स पे लियन कर सकता है। राइट टू लियन मतलब जैसे ही रिजॉल्व हुआ, पहले तो आप एसेट्स को बेचोगे, पैसा आएगा, लेकिन वो एसेट्स जो सफिशिएंट थे टू पे द डेट्स, उसके बाद जो जनरली हम सरप्लस सब पार्टनर्स में शेयर करते हैं, वैसे यहाँ पे शेयर नहीं होगा। पहले कौन से पार्टनर के लिए क्लियर किया जाएगा, फॉर वाई, क्योंकि वो ऐसा पार्टनर था जिसके साथ फ्रॉड किया गया बाकी पार्टनर्स ने। ये है पहला पॉइंट, राइट टू रिटेन द एसेट्स आफ्टर पेमेंट ऑफ डेट फॉर द अमाउंट ऑफ कैपिटल पेड बाय सच वाई एंड फॉर द अमाउंट ऑफ गुडविल पेड बाय सच वाई, पॉइंट नंबर 1। फिर अगर वाई कैपिटल लेके आया जिससे क्रेडिटर पे हुआ, तो उस रीजन से वाई ने जो कैपिटल लाया है उसके लिए वाई का जो पैसा आया उसे हम डेट मानेंगे, विच विल बी पेड बिफोर पेड टू ऑल पार्टनर्स। इसके बावजूद अगर पैसा वसूल नहीं हो पाया तो फिर लॉ बोलता है जो भी पार्टनर्स थे जिन्होंने फ्रॉड किया वो सबको कंपेंसेट करना पड़ेगा टू वाई। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। इफ यू स्टिल हैव डाउट्स, दिस बिट डाइसी, you can ask me in live session, I'll explain you one more। 6 पॉइंट कहता है फर्म का जो नेम है, फर्म का जो प्रॉपर्टी है, उसको ऑन डिसोल्यूशन क्या किया जाएगा। ये कहता है जनरली ऐसा होगा कि फर्म का नाम कोई भी बंदा यूज नहीं कर पाएगा, कोई भी पार्टनर फर्म नेम यूज नहीं करेगा। he will not use the firm name after the firm get dissolved। लेकिन मान लीजिए किसी बंदे को फर्म नेम यूज करना है, तो जिसको यूज करना है वो फर्म नेम को यूज करने के लिए बाकी पार्टनर्स का अप्रूवल लेगा या फिर बाकी पार्टनर्स को गुडविल पे करेगा। जैसे कि
ए बी एन सी पार्टनर्स थे, फर्म डिसॉल्व हो गई, इन्हें बोला मुझे ये नाम कंटिन्यू रखना है और बिजनेस कंटिन्यू करना है, तो बी सी ने बोला कि ठीक है तू कर, हमें पैसा नहीं चाहिए, तू अपना दोस्त है, अप्रूवल ले लिया, चलेगा। बी सी बोला ऐसा नहीं चलेगा, पैसा दे, गुडविल दिया, वो गुडविल जो था वो ए ने बी सी को दिया और फिर ए यूज कर सकता है, मतलब ए कैन यूज द नेम ऑफ द फर्म ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन ओनली इफ ही हैज टेकन कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर्स और he has paid the goodwill to that. I hope you're clear with this concept. Let me just give you a recap. After dissolution happening, the effects of dissolution में पहला कि आप वाइंड अप करोगे, दूसरा वाइंड अप के साथ साथ पार्टनर्स विल गेट टू राइट्स, वंस टू वाइंड अप, सेकंड टू कंप्लीट इनकम ट्रांजैक्शंस। उसके बाद इफ यू अर्न एनी प्रॉफिट्स आफ्टर डिसोल्यूशन बट बिफोर वाइंडिंग अप एंड दैट प्रॉफिट्स is due to the name of the firm or assets of the firm, then that has to be said to all partners. Then if a incoming partner has paid a goodwill for say 5 years but the firm gets dissolved before 5 years, then the unexpired term ke liye he has to pay the goodwill back to the partner who is incoming, but he will not pay if there is a clause कि no refund, number 2 it was due to him, or number 3 it was due to death, तो फिर वो वापस नहीं मिलेगा। If because of fraud or misrepresentation someone was admitted and the firm got dissolved, then he will have right to lien on the assets after the debts are paid. He will also have a right here to be a creditor of the firm if the money of that partner has been used to pay the creditors. And number 3, to be indemnified by the partners अगर इसके बावजूद उसका पैसा वसूल नहीं हो पाया तो। नेक्स्ट पार्ट आता है राइट टू रिस्ट्रेन द यूज ऑफ द फर्म नेम। आप फर्म नेम यूज नहीं कर सकते आप रेजोल्यूशन, कोई भी पार्टनर यूज नहीं कर, पर उसको करना है तो क्या करना पड़ेगा, पार्टनर्स की अप्रूवल या पार्टनर्स से गुडविल पे करके वो राइट लेना पड़ेगा। ये हो गया आपके ये 6 पॉइंट्स। अब आता है मोड ऑफ डिसोल्यूशन, मोड ऑफ सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स आफ्टर डिसोल्यूशन। अब आपने वाइंड अप भी कर दिया, पैसा आया उसे पे भी कर दिया डेटर्स क्रेडिटर्स को, उसके बाद जो बचा दैट हैज टू सेटल। भी क्या कहता है कि द पार्टनर्स मे ले डाउन देयर ओन प्रोसीजर टू सेटल द अकाउंट्स, बट इन एब्सेंस ऑफ द सेम द रूल ऑफ पार्टनरशिप एक्ट विल अप्लाई। रूल ऑफ पार्टनरशिप एक्ट पहला क्या कहता है, गुडविल कैन बी अ पार्ट ऑफ द एसेट्स और कैन बी सोल्ड सेपरेटली। नंबर 2 कहता है लॉसेस इंक्लूडिंग डेफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। पहला पार्ट कहता है गुडविल को आप अलग बेच सकते हो या मर्ज बिजनेस के साथ बेच सकते हो। नंबर 2 लॉसेस इंक्लूडिंग लेस ऑफ कैपिटल, यू हैव डन पार्टनरशिप, अगर को समझ में आता होगा ये जो लॉस है, जो डेफिशिएंसी ऑफ कैपिटल है, उसको कैसे भरपाई करोगे, तो पहले तो उसकी भरपाई कहाँ से होगी, फर्म ने जो कमाया है उससे होगी, जो बाद में कमाया हो। नंबर 2 कैपिटल को यूज करेंगे, उसके बावजूद अगर बैलेंस बचा तो पार्टनर्स अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में वो पैसा लेके आएंगे। मतलब फर्म का लॉस किससे सेट ऑफ होगा, पहले प्रॉफिट से, फिर कैपिटल से, उसके बाद भी अगर लॉस क्लियर नहीं हो पाया तो पार्टनर शैल ब्रिंग इन इंडिविजुअली इन हिज पीएसआर। अब ये कहता है एसेट्स ऑफ द फर्म जो है उसको कहाँ यूज किया जाएगा, और उसके बाद यू हैव टू सी हियर एसेट्स ऑफ पार्टनर्स। तो पहले एसेट्स ऑफ फर्म देखते हैं। Assets of the firm, including partners' contribution to deficiency of capital, shall be applied for paying the debts of the firm to third parties. मतलब पहले एसेट्स और डेफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, जो कम कैपिटल रहा है, उसको पहले कहाँ यूज किया जाएगा, टू पे द डेट्स ऑफ थर्ड पार्टीज। नंबर 2, उसके बाद if there is amount of loans given by partners
तो आफ्टर पेइंग थर्ड पार्टीज लोन्स द पार्टनर शैल बी एंटाइटल्ड टू पे द लोन to get the loan amount back. That is, amount of advances shall be paid to the partners. Such payment shall be made in which ratio? The ratio of advances issued. उसके बाद भी अगर पैसा बच जाता है तो then it shall be paid according to the capital ratio of partners. कैपिटल पे किया जाएगा. उसके बाद भी कैपिटल पे होने के बाद भी पैसा बचता है तो बाकी का पैसा शेयर होगा इन विच रेशियो? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. मैं जो कहता हूं शांत सुनिएगा ध्यान से. आपका बैलेंस शीट है, ये एसेट साइड है. एसेट्स ये पूरा मैं ऐसे दिखाऊंगा आपको. ये एसेट साइड है, ये पूरा एसेट्स. फिर ये डेट्स है, क्रेडिटर्स है. फिर ये आता है आपका लोन्स फ्रॉम पार्टनर्स. फिर आता है कैपिटल ऑफ पार्टनर्स. ठीक है. तो पहले आपने ये देखा कि योर एसेट्स विल बी सोल्ड और उसको बेचने के बाद आपके एक्सटर्नल डेट्स पे होंगे. उसके बाद एडवांसेस बाय पार्टनर्स इन एडवांस रेशियो पे होंगे. उसके बाद कैपिटल विल बी पेड इन कैपिटल रेशियो एंड उसके बाद जो बचेगा दैट विल बी शेयर्ड इन पार्टनर्स इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. आई रिपीट, एसेट्स सोल्ड, एसेट को बेच के यू विल बी पेइंग डेट्स ऑफ द फर्म इन द क्रेडिटर्स लिस्ट पूरा. आफ्टर दैट व्हाट विल बी पेड? एडवांसेस रिसीव्ड फ्रॉम पार्टनर्स इन एडवांस रेशियो. उसके बाद कैपिटल पेड बाय पार्टनर्स इन कैपिटल रेशियो एंड द बैलेंस देन will be shared among the partners in profit sharing ratio. ये कहता है अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हुआ तो क्या होगा? Let me highlight this. In case one of the partner is insolvent and nothing is recoverable from him, then उसका deficiency shall be borne by solvent partners in which ratio? In the ratio of capitals. याद रखना, एक पार्टनर जो इंसॉल्वेंट हुआ उसका शेयर बाकी के पार्टनर्स बेयर करेंगे इन कैपिटल रेशियो. फिर पॉइंट नंबर ई कहता है अगर मान लीजिए there is a liability of partners individually in his personal books and there is a liability of partnership firm in the books of the firm. मैं आपको इसको समझने के लिए पहले एक छोटा सा स्क्रीन ऐड करता हूं, सुनना ध्यान से. यहाँ पे ध्यान देना. ये एक्स है जिसको पार्टनर है फर्म का और ये है एक्स वाई जेड दैट इज पार्टनरशिप फर्म. अरे यार तुम लोग को दिखता नहीं है. आई होप अब दिख रहा है. ठीक है. अब होता क्या है गाइस, एक्स के बुक्स के अंदर एक कार लोन है और एक्स वाई जेड के बुक्स के अंदर एक बैंक लोन भी है बड़ी सी. मतलब एक्स ने पर्सनली अपने लिए कार खरीदी थी जो एक्स की बैलेंस शीट में है और एक्स वाई जेड फर्म ने फर्म के लिए लोन ली थी. इसे कहते हैं लायबिलिटी ऑफ फर्म जो बैंक लोन है और दूसरा है लायबिलिटी ऑफ व्हाट? लायबिलिटी ऑफ पार्टनर इंडिविजुअल. अब ये कहता है कि लायबिलिटी ऑफ फर्म जो है और लायबिलिटी ऑफ पार्टनर जो है
अब मुझे ये बताओ, अगर एक्स का एसेट है, गाड़ी, कार है उसके पास, वो कार को बेच के अगर लायबिलिटी पे करना चाहे तो उसकी पर्सनल कार की लायबिलिटी जो है, सॉरी उसकी पर्सनल कार जो है उसके सामने पहले कौन सी लायबिलिटी पे होनी चाहिए? तो मैं कहूँगा पहले ये लायबिलिटी पे होनी चाहिए, उसके बाद पैसा बचा तो उसका पैसा यूज हो सकता है टू पे ऑफ फर्म्स लायबिलिटी। वैसे ही अगर फर्म के पास एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री है, तो फैक्ट्री को बेच के जो पैसा आया उससे पहले कौन सी लायबिलिटी पे होगी? फर्म की लायबिलिटी पे होगी, और फर्म की लायबिलिटी पे होने के बाद जो एक्स का शेयर आया पैसों आने से, वो पैसे जो आए उससे लायबिलिटी ऑफ एक्स पर्सनली पे होगी। मेरा कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि एसेट्स ऑफ पार्टनर्स shall be used to pay off partners personal liability first and then the liability of the firm, and the assets of the firm shall be used first to pay off liability of the firm and then the liability of partners individually. Let's check it out. When there are debts of the firm as well as individual debts of the partners, the following rules shall apply. The property of the firm shall be first used to pay the debts of the firm, and if any surplus remains, then the share of each partner in such surplus shall be applied to pay the debts individually. I hope that is very clear to you, and if there is no such individual debt, then his share shall be paid to him. पूरा पे किया जाएगा। फिर ये कहता है individual property shall be applied first to pay his individual debts, and if surplus remains, it shall be utilized to pay the debts of the firm. आई होप इट इज वेरी क्लियर टू यू। पर्सनल एसेट ऑफ पार्टनर जैसे गाड़ी थी, उस गाड़ी को बेच के पहले पर्सनल लायबिलिटी पे होगी, उसके बाद फर्म लायबिलिटी, और फर्म का जो एसेट है जैसे फैक्ट्री है उससे पहले फर्म की लायबिलिटी पे होगी, उसके बाद पार्टनर्स को शेयर दिया जाएगा अपना, उसके बाद वो उससे पे कर सकता है। यहाँ पे हमने गाइस ऑफिशियली ये पूरा स्ट्रक्चर जो था वो फिनिश किया। एक बार मैं रिकैप करता हूँ। अकाउंट सेटल करने की जब बात आती है तो ये कहता है पार्टनर्स में डिसाइड ऑन देयर ओन हाउ टू सेटल द अकाउंट, बट इफ देयर इज नथिंग रिटन देन पार्टनरशिप लॉ विल अप्लाई। पहला, गुडविल कैन बी सोल्ड सेपरेटली और इंडिविजुअली। नंबर 2, लॉसेस एंड एफिशिएंट कैपिटल शैल बी यूज्ड फ्रॉम पेइंग फ्रॉम प्रॉफिट्स, then from capital and then capital ratio, and then after that partners will bring the money, inflowing the money inside in PSR. Then they are asking us how will the liabilities be paid off. The assets will be used to pay outside liabilities, then advances of partners in capital in advance ratio, then capital of partners in capital ratio, and then profits shall be shared in profit sharing ratio. Surplus will be shared in profit sharing ratio. Then they said us, what if a partner is insolvent? Then his share shall be borne by remaining partners in capital ratio. Then अगर डेट्स दोनों टाइप के हैं, डेट्स ऑफ द फर्म एंड डेट्स ऑफ द पार्टनर, तो बोला कि डेट्स ऑफ द पार्टनर इंडिविजुअली जो है दैट विल बी यूज्ड फ्रॉम द पार्टनर्स एसेट्स एंड देन फ्रॉम द फर्म्स एसेट्स, और एसेट्स ऑफ द फर्म जो है विल बी यूज्ड फर्स्ट टू पे फर्म्स लायबिलिटी फर्स्ट एंड देन पार्टनर्स। एंड द लास्ट स्टफ एक अलग कॉन्सेप्ट है, जस्ट अ मिनट, मैंने वो स्क्रीन यूज किया ना इसलिए ऐसा हो गया। नाउ सेक्शन 72 है, छोटा सा पार्ट पार्टनरशिप एक्ट पे, कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पब्लिक नोटिस एंड व्हेन इट इज गोइंग टू बी गिवन। ये बोलता है पब्लिक नोटिस इज लाइक एन ऑफिशियल न्यूज़पेपर ऑफ गवर्नमेंट, whereby if they want to say something to the world, they say it not by screaming along, but just by notifying in the official gazette. Official gazette मतलब ऑफिशियल न्यूज़पेपर ऑफ गवर्नमेंट, जिसको हम राजपत्र कहते हैं हिंदी में। अब ये कहता है व्हेन डू यू रिक्वायर, कि जब माइनर बन जाता है ना मेजर सर, तब यू नीड व्हाट,
तब यू नीड पब्लिक नोटिस। जब पार्टनर क्या होता है, रिटायर, तो उसे वर्किंग पार्टनर को देना पड़ता है पब्लिक नोटिस कि मैं रिटायर हो रहा हूँ। जब किसी पार्टनर को आप धक्के मार के बाहर निकालते हो तब आपको देना पड़ेगा पब्लिक नोटिस कि हमने इसको निकाल दिया है। एंड जब फॉर्म रिजोल्व हो जाती है तभी भी हमें पब्लिक नोटिस देनी पड़ेगी। सर नहीं दिया तो माइनर मेजर बन के पार्टनर बन जाएगा, रिटायरमेंट में रिटायर पर लाइबल रहेगा, एक्सपल्शन के बाद भी एक्सपल्ड पार्टनर भी लाइबल रहेगा, और रिजोल्यूशन के बाद भी फर्म लाइबल रहेगी। पब्लिक नोटिस ना देने तक लाइबल रहेगी। वापस 4, माइनर के मेजर होने में यू नीड टू गिव पब्लिक नोटिस, रिटायरमेंट ऑफ वर्किंग पार्टनर दैट इज एक्टिव पार्टनर में, एक्सपल्शन ऑफ पार्टनर में, और फर्म के रिजोल्व होने पे यू नीड टू सर्व पब्लिक नोटिस। नाउ हाउ डू यू सेंड इट? By notifying in the Gazette, by publishing in 2 newspapers, one is English and one is vernacular local language, right? Where the office is situated. और अगर आप रजिस्टर्ड हो तो आपको ROF में भी नोटिस बेचनी पड़ेगी। This is where we finish off the dissolution of firm chapter. Hold on here, don't switch it off. Coming to something which will make you understand this dissolution more better since you have finished it now. Hear it very well. If you see this entire topic, I have taken 2 hours to teach. This is one lecture and one more lecture which I have taken for your reconstitution of firm. ठीक है, now यहाँ पे ध्यान देना, hold on guys, just a second, I'm just opening a page. आने दो, I'll call you live, आने दो, I'll call you live to explain that. That will help you to prepare it very well. ठीक है, watch this video. मैं आपको आज live मिलूंगा, that is 4th of September, to just teach you that part, और tomorrow morning. ठीक है guys, इस topic के बाद you have just left with a small topic called rights and duties of partners, something which is damn simple. यहाँ पे हमने officially actually partnership finish कर दिया है, but formality के लिए मैं आपको एक और टॉपिक ऐड करूँगा। ठीक है, उसके बाद हम रिलीफ हो जाएंगे हमारे पोर्शन से। एक LLP है जो करे ना करे सेम है, बट हम करेंगे वो भी। आई वॉन्ट टू फिगर आउट टू गेट दैट top 10 of India ranker part, but we need to do smart study in this COVID situation. मेरे जो first 4 chapters है ना, that is covering more than 60 marks to be, you know that I've given you the planner. तो उसके question answers is something which we have to go forward and starting revisions to that. I'll see you next class. Take care.